بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Now, my dear fellows and my students and my colleagues and my friends and those who are appearing in the undergraduate examinations and postgraduate examination of membership or fellowships in the country or outside the country, or those who are also doing the PhD programs or MPhil programs. Now, one of my colleagues or some of my friends also asked me that in the end of the last lecture you are taking the enteric fever at your own experience. Actually, it is a manuscript which I have actually sorted out and gave it to the PowerPoint so that you can comment on this and I can make the paper from that manuscript. We are actually taking the subject of infectiology, and that is infection and disease. We reached up to the negative basali, and from the basali we are doing the genus Salmonelli, and from the genus Salmonelli we are dividing it into two. One is the non-typhoidal type of Salmonelli, and another one is the typhoidal type of the Salmonelli. Now, in this group, the most invasive one is the typhoid type of the Salmonelli. And I have said that I make a group which is called the Enteric group of fevers. It can be caused by the Salmonella typhi or Salmonella typhi A, B, and C, and sometimes the Salmonella enteritis or typhimurium can be invasive, see some piriforms, and give the picture of enteric fever. The thing is this, it is decided now that the disease has been treated since many, many years, and different management and preventive programs have been launched. In Pakistan, between 1960 and 70, where a lot of incidences have been appeared. And the incidence per year is very high at that time. And they have given, because they have not been diagnosed on the correct paths, and usually the natural history of the disease is death at the end because of the sepsis and the septic shock and DIC and other pathways of inflammation. Now, the thing is this, the disease was called as a typhoid fever in 1960 and between 70, and we have taken admission in 1974 in the Dow Medical College 74-75, where the disease still is as such that it's typhoid fever, and it's treated by the drugs they have chosen at that time was the first line drugs. And there are no other options. Because at that time the other group of antibiotics are not, or the other generation of antibiotics were not invented. So you have to give those medicines which are called first line medications. Because of the health awareness and because of the education is gradually increasing in the country, the people know that what is enteric fever means. Typhoid fever is a deadly disease if you are not treated on a correct pathway. The people, they have chosen their own pathway. For example, they are going to any person who is called the health carrier, whatever now is or whatever it is.
doctor or quack or whatever it is. So they are giving the drugs. They don't know how to give the drugs. And I mean the pharmacy people and the homeopaths and hakims are also using these first-line drugs. And over-the-counter drugs are also took place in that in these years from 1960 to 1980-81. So the salmonella has the quality that if you are repeatedly using the drug or incorrectly using the drugs, they will cause resistance to the agent. Because of the phenomena of the resistance, I don't want to discuss it because there are many theories have been made and hypotheses and giving the theory. And they have done the molecular biology, and they are using their knowledge of molecular biology. They know better how the resistance occurs against the microorganisms. These are the predisposing factors of the resistance to the drugs which I have just told you. I'm happy that somebody has asked me the management of the enteric fever with recent advances. And I am Professor Syed Ali Haider. I am the visiting professor of medicine GSC in Karachi, and I am taking the online lectures freely. So, because I am taking the lectures freely, so please follow. These are some of my knowledge of rather 45 years of clinical practice. Based on this knowledge, because nobody is confidently speaking about the management part is concerned. Everybody is shaky. This drug should be given or that drug should be given, etc. etc. Confidently. In these days, I mean in this era, we are not 100% confident of two things. One is the diagnostic criteria or diagnosis still is lacking. That's what the medical personnel do not diagnose 100% perfectly. They do not. Secondly, if they diagnose it, they don't know that whether it is the susceptible type of the typhoid or it is the resistance, multi-drug resistance, or it is the rather more extended drug resistance, or multi-drug resistance with extension. So, the WHO diagnostic criteria has been launched in 2021. And this is written in front of you that the confirmed case of the typhoid fever is a patient with a fever more than 38 degree and above that has lasted for at least 3 days. Same as the dengue fever or same as the malaria, with a laboratory confirmed positive culture. What culture? Blood culture. First week, or in the second week follow the urine culture or stool culture or fluid culture or bone marrow culture in the end. Can be done in the later weeks, it's possible. This is a confirmed case. If you have got the direct evidence of the bacilli, which are called Salmonella typhi or type A, B, or C, or invasive form of the non-typhoidal type of bacilli. The probable case of the typhoid fever, this is another terminology they have used. A patient with a fever that is 30 degrees centigrade and above, again that has lasted for at least 3 days. It is documented fever. It is a positive serodiagnosis or antigen detection test, which is available in some of the labs, but it is not very unpopular. But without
Salmonella typhi isolation means culture was negative. It is a probable case. The third one is the chronic carrier. That is the accretion of the Salmonella typhi in the stools of the urine or repeated positive biological in the string cultures for longer than 1 year after the onset of the acute enteric fever. Short-term carriers also exist, but their epidemiological role is not as important as that of the chronic carriers. Also exist, but their epidemiological role is not as important as that of the chronic carrier. Then short carriers are not important because they are for 2 months, 3 months. So I have taken actually these carriers after the 3 months. For more than 3 months to 1 year, it is chronic carrier. And if it is less than this, if you can isolate it, it is short term carrier. Or it means that epidemiology is based upon the true chronic carriers. They have written like this. It is the diagnostic criteria designed by experts. In our country, how can we apply it? There are a lot of problems. The patient, the patient's relatives, the consent about the investigation, the cost effectiveness, etc. Everybody wants, shortcut of anything. आप किसी में भी चले जाएं, दुआ के लिए शॉर्टकट होगा, बख्शवाने के लिए शॉर्टकट होगा, हर जगह यही एग्ज़ाम पास करने के लिए शॉर्टकट्स होता है. अब ह्यूमन लाइफ है ये तो ना, इसमें शॉर्टकट्स का तो मसला है बहुत बड़ा. शॉर्टकट मारा उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल हो सकता है, चलो इसको डायग्नोज कर दो. तो इस क्राइटेरिया पे वो पूरा उतर रहा है नहीं, इन्हें नहीं मालूम, या उतर गया और फॉल्स पॉजिटिव आ गया. वो उनके ध्यान में ये नहीं आ रही बात कि फॉल्स पॉजिटिव है और उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया. ये दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. As far as my is concerned, at 45, because of my experience, I've said that a lot of cases have been seen. Probably diagnostic criteria is not fulfilled. The above, that is confirmed case of the typhoid fever. Only 7 persons, adults, and 13 or 14, you can say, children have been detected as the culture is positive. Blood culture. I have never seen urine culture. Stool culture, yes, I have seen about 5, 7. No, the bone marrow, rather I will see 2 in a very disputed case of paroxysmal urinary in my whole life of practice. Now the probable case of the typhoid fever, the thing is this, the fever is there for 3 days. You go for the blood with CBC, it is not confirmatory, you cannot understand it properly. And you do for a Tephido test or typhoid lot test or what is Brown test or whatever. There are many names of it. IgM, IgG. If it is IgM positive, it is acute. IgG is IgM, it is acute, and IgG is there. It means that the fever lasts for the 4 weeks before. It is a short-term carrier probably. हुआ था, अब वो ठीक है कि वो रिजोल्यूट हो गया, ये मायने हो गया ना इसका. अब इसमें मसला ये था IgM पॉजिटिव टाइफाइड था, उसका मसला ये है कि उसकी फॉल्स पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है. बिकॉज साल्मोनेला की जीनस बहुत बड़ी है, नंबर 1. नंबर 2, इससे मिलते जुले जेनेटिक स्ट्रक्चर मौजूद है. मलेरिया में है और कुछ वायरल भी हैं जिनकी जो है वो डिटेक्शन हो जाती है. अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ PCR क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता. PCR को अगर आप करेंगे तो उसमें भी वही डिटेक्ट करता है, वो असल में डिटेक्ट करता है DNA प्रोब. अब DNA प्रोब के अंदर जो मसला है वो स्पेसिफिसिटी का भी है. इसमें यही आ जाता है कि वो क्रॉस, बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं कंपोनेंट्स अमीनो एसिड्स के, इसलिए वो बहुत पॉजिटिव आ जाता है. PCR एक तो महंगा बहुत है, फिर उसकी जो सेलेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना ये लोग. तो कल्चर की तरफ जोर दे रहे हैं सिर्फ, आपके कल्चर को किसी तरह से पॉजिटिव कराओ.
तो फिर कंफर्म्ड है। और प्रोबेबल अगर करना है तो फिर ये है कि आप सीरो डायग्नोसिस करें, वो भी जेन्युइन होनी चाहिए। इसमें जो सबसे अच्छी सीरो डायग्नोसिस है वो विड्रॉल की है, जिसको मैं एग्लूटिनेशन टेस्ट कह रहा हूँ, और वो भी राइजिंग टीटर के साथ, और जो कि हर 5 दिन 4 दिन में 4 दिन में 5 दिन में आपको मिलेगा कि पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, 1:20 था, फिर 1:40 हुआ, फिर 1:60 हुआ। अगर वो राइजिंग टीटर 2 में मिल जाता है, डबलिंग टाइम उसका 10 डेज में भी या 7 डेज में भी मिल जाता है, तो ये तो आप मान लेंगे मेरे साथ सही है कि ये प्रोबेबल केस हो सकता है, नॉट 100% श्योर, बट इट इज़ प्रोबेबल केस। इसमें भी विड्रॉल में भी फॉल्स पॉजिटिव होते हैं और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। फिर हम दोबारा जो है ना आगे मुसीबत में है कि अब इसको मतलब ये कि अब डायरेक्ट इसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है किसी चीज़ का, आप ये देखिएगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का इसमें कोई जिक्र नहीं है। CBC जो कॉमनली कराते हैं, CRP, SR, LFTs, ये सब चीज़ें कराते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ जो जिक्र वो कर रहे हैं वो ज़्यादातर सिर्फ पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे कर रहे हैं, जो फीवर के साथ है, एक्यूट फीवर के साथ है, और उसको या तो उन्होंने पॉजिटिव कर दिया है ब्लड कल्चर के साथ या किसी भी कल्चर के साथ, या फिर पॉजिटिव कर दिया है प्रोबेबल केस में सीरो डायग्नोसिस पर या एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट पे। हम तो वहीं पे हमारे लिए मसला ये है, वी आर डीलिंग विद द पेशेंट। 90% 80% पेशेंट जो है ना उनके साथ जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का प्रॉब्लम है। लैब की जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो वो CBC तो करा लेते हैं वो, या आप उनको कहेंगे यूरिन करा दो ज़्यादा, ये आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको तराजी करेंगे तो विड्रॉल के लिए या टाइफाइड डॉट ज़रूर लोग जोर दे के करा लेते हैं, क्योंकि टाइफाइड डॉट मैंने कहा कि इसको मानते ही नहीं है ना, अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया ने डिस्कार्ड कर दिया इसको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने डिस्कार्ड कर दिया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ले लेते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम की कंट्रीज के अंदर में जो आते हैं, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ पे भी ये टेस्ट नहीं होता। एंटीजन डिटेक्शन होते हैं उनके पास, लेकिन वो भी कन्फर्मेटरी नहीं है टेस्ट। तो हम जो है ना यानी 45 ईयर्स में हम ये पहुँचे कि हमें जो है ना क्लिनिकल असेसमेंट करना चाहिए पहले, तो जो मैंने पहले बताई है आप, अगर उसके ऊपर पूरे उतर रहे उसमें 3-4 इशारे भी मिल जाते हैं आप, तो आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट उसको दे दीजिए। जैसे मैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया आपको मिला, कंफर्म कर लिया आपने, हाँ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, फीवर है, उसका पैटर्न उसका जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर कंटिन्यूएशन में ही है वो, या रेमिटेंट नेचर का, ये समझ लें। स्टेप लेटर नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं। और पेशेंट ने कोई ड्रग्स भी नहीं खाई हुई हो इस किस्म की, एनाल्जेसिक्स पावरफुल ना खाई हो, एनासिड ना खाई हुई हो, और वो एंटीबायोटिक पर स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके लिए तो आसान है ये कि आप चीज़ें पकड़ लें। CBC जो है ना आपकी हेल्प कर सकता है। अब इसके अंदर जो है ना ल्यूकोपीनिया अक्सर मिलेगा, नॉर्मोपीनिया भी मिल सकता है, WBC की बात हो रही है। और कभी कभी जो ल्यूकोसाइटोसिस भी हो जाता है, जिसको मैंने क्वेश्चन किया था, तो उसका जवाब नहीं दिया, मैंने आपको नंबर भी दिया था कि आप मुझे बताएं कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होता है, तो उसको उन्होंने लिखा हुआ है अबाउट 10% या 5% होता है। तो ये कंफर्म नहीं हुआ ना, अब आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएगा, DLC को देखिए, अगर ल्यूकोपीनिया है तो ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। अब आप DLC को देखें, इसके बाद थर्ड, लेकिन इस तरह देखा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें न्यूट्रोफिल काउंट, लिम्फोसाइट काउंट, मोनोसाइट काउंट, इजोनोफिल काउंट, ज़्यादातर इसके अंदर जो है न्यूट्रोफिल की जो वैल्यू है वो जो नॉर्मली है, जो लिखी है वो ज़्यादातर बुक्स में वो लिखी हुई है 70 to 90% या 65 to 90%। इसमें जो है ग्रेजुअली जो लैब की है जो रिपोर्ट उसके लिए आते गिर जाएगा, 50% हो जाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स इसके अंदर जो है ग्रेजुअली ज़्यादा होते हैं इसके मुकाबले में, तो 40% तक नॉर्मल होता है, तो 44-42% आपको मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो अभी ऑप्शन मौजूद है मोनोसाइट्स का, तो इसी की मोनोसाइट की टाइप है ये, फेगोसाइटोसिस करने वाले मॉडिफाइड लिम्फोसाइट है। तो ये जो है इनकी तादाद जो होती है वो 8% तक कुछ लैब में होती है, तो ये आपको 11% 12% तक मिले, कुछ इंक्रीज मिल जाएगा।
वो भी नहीं मिलता तो आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है, वो है इज़ोनेफिल काउंट। ये सप्रेस कर देता है इसको। मेरे पास जितने केसेस आए हैं जो मैंने देखे अब तक 75% में इज़ोनेफिल काउंट या तो 0% था या 1% था, अगर कोई मॉर्बिड नहीं थे इसका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इज़ोनोपीनिया, एब्सोल्यूट इज़ोनोपीनिया या बहुत ही इज़ोनोपीनिया, उसको 1% नहीं, इज़ोनोपीनिया, तो वो मुझे मिला है। बाकियों में जो है वो 2%, 3%, 4% इतने राउंड में मिला है। इज़ोनोफिलिया नहीं मिला इसे तय हुई बात। तो ये इंपॉर्टेंट बात है एक्सक्लूजन की, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है पैरेलल चल रही, तो इज़ोनोफिलिया नहीं मिला। पहले तो मैं ये देखता हूँ पेशेंट की हिस्ट्री देखी, फिर ये चीज़ें देखी जो मैंने आपको बताई हैं, और फिर आखिर में आपको ब्लड CBC देखा। बस अगर LFT करा लेते तो इसके अंदर आपको जो है ना बिलियरी स्टेसिस के एलिमेंट मिलते हैं, यानी इसमें जो है अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो इंक्रीज़ हुआ है उसका, और गामा GT इंक्रीज़ हुआ है, तो ये आपकी हेल्प करेगा इसमें। क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिएंट जो है ना वो पोस्ट हेपेटिक होता है बिलियरी स्टेसिस, सब में नहीं होता है, अक्सर में होता है, तो आपको कुछ और फ़ायदा मिल जाएगा। चलो एक्सक्लूजन के लिए आपने दूसरे भी टेस्ट कराए नहीं कि वो पॉसिबिलिटी नहीं थी इनमें, चलो ठीक है। अब इन चीज़ों को आप जमा कर लें, तमाम चीज़ों को। तो अब ये जो है ना आपके पास, हमने नहीं टाइफाइड डॉट नहीं कराया, लेकिन विडॉल को करा दिया। पेशेंट राजी था, उसने विडॉल को कराया, 1:20 टीचर था उसका। हमने कहा भाई 4 दिन बाद फिर कराओ, तो हमें डबलिंग मिल गया, 140 या 160 मिल गया। हमारे नहीं, हमारे मुल्क के लिहाज से अब ये कंफर्म केस कराएगा, लेकिन आपने जो ब्लड यानी कल्चर था उसमें वो नेगेटिव था, यूरिन तो बाद में भेजा जाएगा, स्टूल बाद में भेजा जाएगा, इस जोन में आता नहीं है वो। तो जब पेशेंट जाए रहे सेप्टिसिमी फेज में आ जाएगा ना, जब आप ये पकड़ रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी गई, वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, वो पहले ही खा लेते हैं, तो 30 to 40% तो वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा वो। अब उसकी जो इफेक्टिवनेस है ब्लड कल्चर की, वो 60% रहेगी। अगर इसके अंदर मौजूद हुए तो वो आ जाएंगे कल्चर में, वो भी अगर सही आइसोलेशन करना आता है किसी को। यहाँ पे सब कल्चर करने पड़ते हैं, मुसलसल सब कल्चर करने पर आपको मिल जाए। अब यहाँ तो कौन करेगा सब कल्चर, एक दफ़ा करेंगे फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, मुश्किल काम है। क्योंकि आपके माइक्रोबायोलॉजी जो होती है जिस तरह से, इसमें भी लिमिटेशन रखते हैं वो, इसके बाद नहीं करेंगे। तो ये मसला है। तो ज़्यादा ब्लड कल्चर मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे सुना दिए थे आपको पहले। मैं किसी भी एंटेरिक फीवर को डायग्नोस कर रहा होता हूँ तो जहन में रख कर करता हूँ कि इसका नेगेटिव आएगा, सीधी बात ये है। तो मैं इस केस को जो अपनी केस डेफिनेशन बनाता हूँ वो इस तरह बनाता हूँ। लेकिन मेरे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, अर्ली अराइवल हुआ मरीज का, वो एनाल्जेसिक ले रहा था, पैरासिटामोल ले रहा था, साथ में ब्रूफिन खा रहा था, कुछ भी खा रहा था। वो बता रहा था कि थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, जिस तरह की हिस्ट्री है। इसमें जो है मुझे कुछ क्लिनिकल सिम्टमेटोलॉजी मिल गई, क्योंकि मैं काम करता हूँ मरकज़ राज से। मेरी आदत है कि मैं जनरल एग्जामिनेशन, सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन होता है, इसको ऊपर से नीचे देखना पड़ता है। उसमें से कुछ पॉइंट फेवरेबल मिल गए मुझे। मिसाल के तौर पे कहीं मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, कभी मुझे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिल गया, कहीं मुझे सॉफ्ट स्पिन मिल गई। ठीक है ना, जब करेंगे तो पता चलेगा ना। जब आपको स्पिन ही पल्पेट करनी नहीं आती सही, ख़ास में सॉफ्ट स्पिन तो बहुत ही मुश्किल है। अल्ट्रासोनोग्राफी लोग करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भाई, अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब होता है इंक्रीमेंट। वो आपको बताएगा कि साइज ऑफ स्पिन बढ़ गया। तो आप तो पल्पेट कर रहे हैं ना, आप स्पेसिफिक पल्पेशन है स्पिन की तो करते ही नहीं है। मोनेक्सिन मेथड है, दूसरे मेथड है, दूसरे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। उस पर एक अलग जो है ना क्लास दी जाए और डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए कि स्प्लीन को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। स्प्लीन मेगाली को, ये माइल्ड होती है, सॉफ्ट होती है, हाथ में नहीं आती है आपके, बड़ी मुश्किल है। इसका एच तलाश करना बहुत डिफिकल्ट है, कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते आप, क्योंकि आप इतने करते नहीं हैं। कितने एब्डोमेन पल्पेट कर लेते हैं, क्वेश्चन ही है। हम तो रोज़ाना 4-5 तो करते ही करते हैं। एक ज़माने में 20, 25, 30, 40 भी हो जाते थे। तो हमारे साथी थे वो ज़्यादा बताते हैं इससे, तो उनको तो फिर आता है कि इसको कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो था हम ये एंटेरिक फीवर बनाते हैं। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और अगर वो शाये हो जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो फिर
अपेयर हो जाएगा, ज़ाहिर है किसी न किसी बुक में तो अपेयर होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसको किसी हायर पेपर में दिया जाएगा और उसको देखेंगे कि एक्सेप्शन देता है वो या नहीं देता। आप अपने जो है वो ऑब्जर्वेशन भी शामिल करा सकते हैं इसमें, अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो। हम आपका नाम शायद करेंगे, आप अपने नंबर ऑफ पेशेंट बताएं कि आपने किस तरह डिटेक्ट किया इसको, आपके पास कितने ब्लड कल्चर पॉजिटिव थे, क्लिनिकल प्रोफाइल कितना पॉजिटिव था। उस बेस के ऊपर जो है ना ये डायग्नोसिस बनेगी। डायग्नोस्टिक जो है ना जो इसका है वो आसान नहीं है। इम्पॉर्टेंट नोट, बिफोर प्रोसीड वन इज टू श्योर ऑफ द डायग्नोसिस। थेरेपेटिक ट्रायल इज नॉट रिकमेंडेड बाय WHO। ये नहीं है कि तुक्का लगा के आपने पहले ही ट्रायल दे दिया, थेरेपेटिक ट्रायल, बिकॉज ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटेरिक फीवर। तो इसको देने से ये होगा कि मरीज तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मल्टी रेजिस्टेंट जो है ना वो टाइफाइड बन जाएगा, ये जो आपके मुल्क के लिए मुसीबत बनेगा। फिर एक्सटेंडेड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटेरिक फीवर बन जाएगा। ये एक मुश्किल मामला है कि उससे भी ज़्यादा जो दिया गया कि आपने चाहा था इसको रोक दिया था मुल्क में, इंसिडेंस को लो कर दिया गया था, लेकिन वो फिर दोबारा एक्सटेंडेड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के तौर पर सामने आ गया। ड्रग देने कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हाईली मोर्टालिटी इन दोज वेयर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस वाज करेक्ट, लेकिन वो उसे नहीं सोचा ही नहीं किसी ने ना उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल एंटेरिक फीवर डायग्नोज आपने कर लिया ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स, बट वी मिस द वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव डायग्नोसिस, दैट इज कोरोना इन्फेक्शन था, पॉजिटिव था, PCR भी पॉजिटिव था, नेजल भी था, फ्रिंजल भी था, उसके फीचर भी थे रेस्पिरेटरी के। लेकिन आपके जहन में ये आई थी बात, ये एंटेरिक फीवर है, कि उसको जो था वो दूसरी चीज़ें और भी मौजूद थी। इसकी वजह से मोर्टेलिटी फिर जो है ना ज़्यादा हो जाएगी, कि वो तो मारा तो नहीं जाएगा, इससे नहीं मारा जाएगा तो कोरोना वायरस से मारा जाएगा, कि वो मतलब जहन में भी नहीं था आपके, हमने आइसोलेट भी नहीं किया पेशेंट को। ये सारे मसले हैं। अब क्लासिफिकेशन की है कि व्हाट इज नॉन रेजिस्टेंट मीन टाइफाइड फीवर कॉज बाय सैलमोनेटिफाई और सैलमोनेला पैराटाइफाई B or C strains who are sensitive to the first line drugs and third generation cephalosporin with or without resistance to the second line drugs, with or without resistance to the second line drugs। इसको उनको कहते हैं नॉन रेजिस्टेंट, क्योंकि वो अब फ्लूरोक्विनोन इस्तेमाल करते हैं, ये cephalosporin इस्तेमाल करते हैं, इसको भी उन्होंने नॉन रेजिस्टेंस में रखा है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब होता है कि जो बुनियादी ड्रग्स हैं टाइफाइड की, वो फर्स्ट लाइन तीनों ड्रग्स के साथ, और चौथी इसको कैफलोस्पिरिन को भी शामिल करें। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स के साथ अगर ये हो जाता है रेजिस्टेंस, जैसे 4 मैंने बोली है तो 3 में हुआ है, चौथी को आपने किया ही नहीं था, कल्चर में लाया नहीं अंदर, तो हमें मालूम है कि MDR मल्टी ड्रग हो जाएगा। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस मतलब ये मतलब 2 या 2 से ज़्यादा थी, यहाँ पे तो सारी की सारी ड्रग्स फेल हो गई। जितनी भी ड्रग जो हम एंटी टाइफाइड की तरफ इस्तेमाल करते हैं, सारी ड्रग के साथ रेजिस्टेंट हो गया, सेकंड लाइन ड्रग से भी, फर्स्ट लाइन ड्रग से भी, वो भी गई, सेकंड लाइन भी गई, फर्स्ट लाइन भी गई। तो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड फीवर। ये प्रॉब्लम है। मैंने जो केसेस देखे हैं MDR टाइफाइड फीवर के, वो तकरीबन होंगे 75 से ज़्यादा, और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट के मैंने केसेस हैं 10 या 11। बाकी जो है वो सारे के सारे नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर के, वो मैनेज हो गए थे आसानी से। तो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी क्या है इनकी कि क्लोराम्फेनिकोल हैज़ बीन एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट विद टाइफाइड फीवर मोर देन 30 years। यार ये 30-40 साल पुरानी ड्रग है, क्लोरोमाइसिन के नाम से है, इंजेक्टेबल भी है, ओरल भी है, सस्पेंशन में भी है, और चिल्ड्रन में बड़ी इफेक्टिव है। ऑल्दो द एम्पेसिलिन एंड कोटामैक्सोल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अल्टरनेटिव, उसके अल्टरनेटिव है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, और एमॉक्सिसिलिन को भी शामिल कर सकते हैं। दे हैव साइड इफेक्ट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट सिमिलर टू द क्लोरोफेनिकोल थेरेपी। इनको बहुत लंबे अरसे तक देना पड़ेगा, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, खासतौर पर क्लोरोफेनिकोल का 1 to 2% एप्लास्टिक एनीमिया कॉज कर देती है। हमारे अमेरिका के लिए तो एप्लास्टिक एनीमिया या पैंसोरेपिनिया 1 अगर 2% भी हो तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो CDC जो है उनकी अप्रूव नहीं करती इस ड्रग को,
जब तक कि कोई आदमी वो हो जो इंटरनलिस्ट हो और स्पेसिफिकली लिख रहा हो ड्रग, तब वो फार्माकोलॉजी देगा उसको, मेडिकेशन में ना ये नहीं देगा। बैन नहीं की गई है, उनके पास मौजूद है, वो इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब बहुत मजबूर हो जाते हैं। तो सेप्ट्रॉन है और एम्पिक्लॉक्स है और एम्पेसिलिन है, सीधे नाम में क्लोरोमाइसिटिन है, ये वो ड्रग्स थी इनके बारे में फर्स्ट लाइन थेरेपी में ऑफ थेरेपी ये थी। और ये वो टूल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें क्लोरामफेनिकोल है, कोट्रामेथोक्साम, फ्यूरोजोलिडोन, ये भी फर्स्ट लाइन थेरेपी है। एम्पेसिलिन, फ्यूरोजोलिडोन को शामिल किया गया है 1970 से 75 तक। और डॉक्टर गफार बिल्लू जो पीडियाट्रिशियन है, बाबा पीडियाट्रिक्स है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट है। एम्पेसिलिन है या एमोक्सिसिलिन है, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है वो जो आई है वो ड्रग जिसने तहलका मचा दिया, जो मेरे इल्म में भी नहीं थी क्योंकि मैं पास आउट हो चुका था, और वो टेरेविट थी, वो फ्लोक्सिसिन 200 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम पहले दे के उसको रखते हैं। और ये जो है BD दी जाएगी, फिर उसके बाद OD दी जाएगी, फिर उसको 7 to 10 डेज रखते हैं। उसके बाद इसका जो आया डेरिवेटिव वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसने जो है ना इनकलाब बर्पा कर दिया। और इसने जो है ना सब इसकी डोज थी 750 मिलीग्राम आपको देनी होती BD फॉर एटलीस्ट 5 डेज, और फिर 500 मिलीग्राम BD फॉर अनदर 5 डेज। और इसका जो प्रोडक्ट थी वो लीवोफ्लॉक्सासिन थी, जो कि लिवर में जाके सिप्रोफ्लॉक्सासिन कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट है। तो ये जो है ना ये भी बहुत इफेक्टिव ड्रग थी जो इस्तेमाल हो रही थी सेकंड लाइन के तौर पे। और इसको जो देते थे वो उन डोज में जो आप जो देते हैं उस तरह नहीं देते हैं। इसको जो देते हैं शुरू में 3 डेज जो है 1000 मिलीग्राम देते हैं BD फॉर 3 to 5 डेज, और फिर उसके बाद जो 500 मिलीग्राम OD फॉर 5 डेज, यानी लोडिंग डोज में देते हैं इसको, क्योंकि इसको कन्वर्जन टाइम चाहिए। एमोक्सिसिलिन क्लोरामिक एसिड जो था ये भी जो है ना सेकेंड लाइन ड्रग थी, पॉपुलर ड्रग थी। क्लोरामिक एसिड जो दरियाफ्त हो गया और जो ऑगमेंटिन के नाम से आता था, ये अब ड्रग जो थी सेकेंड लाइन में आ गई, और ये बड़ी इफेक्टिव थेरेपी रही है। हमने जो दी है हमने उसको देखा, बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट इसका। उसको जो देते हैं वो 1 ग्राम BD इस्तेमाल की जाती है और 3 to 5 डेज, फिर इसको टेपर कर दिया जाता है, फिर इसको दिया जाता है 625 मिलीग्राम 3 times a day फॉर अनदर 5 to 7 डेज। अब सिरोक्सिन में सिरोक्सिन और सिफेट्रैक्सोन, ये जो ड्रग्स जो लिखी हैं नीचे, ये जो ड्रग्स आपको लिख के दी गई हैं, सेकेंड लाइन ड्रग थेरेपी है ये जो है ना ये टॉक्सिक एजेंट, खासतौर पर सिरोक्सिन जो है वो तो आप वैसे ओरल में भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप देंगे 800 मिलीग्राम, अडल्ट की डोज बता रहा हूँ, 5 डेज एंड देन 400 मिलीग्राम OD फॉर अनदर 5 डेज। सेफ्ट्रैक्सोन जो है ये इंटरवेनस इस्तेमाल होती है और आप लगाते भी हैं इसको। तो पहले जो 3 दिन दिया जाएगा 2 ग्राम दिया जाना चाहिए IVBD, एंड देन स्विच टू द 1 ग्राम और 2 ग्राम once a day। आपकी मर्जी है BD दें once a day, 2 ग्राम दें फॉर अनदर 7 डेज। ये इफेक्टिव मैनेजमेंट थी सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स की। और थर्ड लाइन ऑफ ड्रग जो बाद में उन्होंने जो डिस्कशन रखी हैं वो मेरिपिनम्स हैं, ये जो है ना बीटालैक्टम्स हैं, मोनोबैक्टम्स हैं और एजिथ्रोमाइसिन है। ये थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स हैं जिनको अभी इस्तेमाल करते हैं वो एक्सटेंडेड रेजिस्टेंट में। तो एंटेरिक फीवर ये नॉन रेजिस्टेंट है, सेंसिटिव टू ऑल द फर्स्ट लाइन एंटीमाइक्रोबियल्स। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हुआ, रेजिस्टेंट टू ऑल फर्स्ट लाइन जो मैंने भी बताई। और एक्सटेंडेड ड्रग क्या चीज़ है कि रेजिस्टेंट टू बोथ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन जो मैंने बताई। थर्ड लाइन का जिक्र नहीं है इसमें थर्ड जनरेशन को भी शामिल कर लिया गया है, जाहिर बात है। वो मैंने बता दिया कि वो भी उनमें से कुछ ड्रग, नॉट ऑल, उनमें शामिल की गई हैं। क्यों अब इससे अच्छी ड्रग मौजूद है आपके पास, फोर्थ जनरेशन भी है जिस पर वर्क हो रहा है, तो उसको भी इन्होंने शामिल कर लिया है इसको।
अब ये थर्ड लाइन ऑफ ड्रग, इसको देना है आपने ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट लाइन देना है, ये नॉन रेजिस्टेंट है, इसको ये ये आपके पास है, तो फिर आपने सेकेंड लाइन देना है, और इसमें जो है आपको थर्ड लाइन देना है, तो ये मैनेज हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये नॉन रेजिस्टेंट है, ये बताना बड़ा मुश्किल है, ये आपको क्लिनिकली टेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान में करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ग्लोबल इंसिडेंसेस में दिखाएँ आप, ये देखिए एरिया ये वाले जो ब्लूइश हैं रेंज में आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरिया, यहाँ पर इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। फिर उससे कम जो है ये वाले इन एरियाज में है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की कुछ हैं। और बहुत इसके बाद ग्रेश कलर में जो आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो है ये सब एंडेमिक फॉर्म में आपको मिलेगा। वो साउथ अमेरिका है और कुछ जोन मैक्सिको के हैं, और जो वाइटिश हैं बिल्कुल उनमें ये आइसोलेट फॉर्म में मिलेगा। हर जगह मिलेगा, हर जगह। जब स्कीमोस ग्रीनलैंड में मिल सकता है और ये नॉर्थ पोल में भी मिल सकता है, तो फिर ये हर जगह मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आइसोलेटेड केसेस होते हैं, बिकॉज इसकी रीजन है कुछ, इसको छोड़ें आप। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर इज डिफाइंड एज द टाइफाइड फीवर caused by the Salmonella enterica serotyphoid strains, typhoid, Salmonella typhi, or type, or A or B or C, which are resistant to the first line recommended drugs for treatment, such as clonipar, ampicillin, and cotrimoxazole. That's the trimethoprim, sulfamethoxazole. Since the mid-1980s, MDRTF has caused outbreaks in several countries in the developing world, resulting in increased morbidity and mortality, especially in the affected children below the 5 years of age. चिल्ड्रन में ज़्यादा मोर्टेलिटी थी, एंड देयर हु आर मालनरिश्ड पीपल लाइक इन अफ्रीका। सजेस्टेड प्लान इनका जो था वो ये था, एंटीबायोटिक देनी है, जो ज़ाहिर है कि ये तो फर्स्ट लाइन की ड्रग तो दे नहीं सकते इसमें, अब सेकेंड लाइन देनी पड़ेगी। उसमें आपको फ्लूनिकोलविरान्स हैं जिनमें मैंने नाम ले दी है, और स्पिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और ओफ्लॉक्सासिन है, नॉफ्लॉक्सासिन को भी शामिल कर लें। लेकिन अब इन्होंने जो है ना सेकेंड लाइन में जो शामिल किए थे, मैंने आपको जैसे बताया कि ऑगमेंटिन को भी शामिल किया है इसमें, यानी एमोक्सिसिलिन को, प्रोमिनेंट एसिड वाले को, और सेफ्ट्रैक्सोन को, और सेफरक्सिन। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट तीनों की तीनों लाइन आपके पास से चली गई थी, यानी मतलब ये कोट्रामोक्सोल आपके पास से गया, आपके पास एम्पेसिलिन गई और क्लोरोफेनिकोल गया, तीनों ड्रग्स के रेजिस्टेंस था। तो फिर आपने इसको कहा कि MDRTF है, और उसमें इन ड्रग्स दो नहीं लिखी इसमें, उनको आप इस्तेमाल करेंगे, डोज मैंने पहले भी बता दी थी। तो एक्सटेंडेड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है टाइफाइड फीवर, वो है टाइफाइड स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू क्लोरोफेनिकोल, एम्पेसिलिन को, फर्स्ट लाइन से सारे के सारे, और सेकेंड लाइन की सारी ड्रग्स, फर्स्ट लाइन से भी और सेकेंड लाइन की ड्रग्स भी जो है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सजेस्टेड ट्रीटमेंट प्लान जो है इसका वो ये है कि ज़्यादा कि इट शुड बी ट्रीटेड विद दी अदर फार्मास्यूटिकल लाइक कार्बापेनम सच एज मिरोपेनम, और यू कैन डी मोनोवैक्टीन ऑल्सो एज़िथ्रोमाइसिन, या इन दोनों को कंबाइन कर दें, ड्यूअल थेरेपी दे रहे हैं। अब ये देखिए कि मोनोथेरेपी उम्मन दी जाती है, इसके अंदर जो है ना ड्यूअल थेरेपी इजाज़त है, इवन ट्रिपल थेरेपी की भी इजाज़त है, कि मरीज को तो बचाना है बहुक और बहरुक, अल्लाह उसकी मदद करे। केस सपोज दैट द पेशेंट हु डू नॉट इम्प्रूव ऑन अ कार्बापेनम, अगर आपने दी थी मिरोपेनम फॉर एग्जाम्पल अलोन, मे बी विद एडिशन ऑफ द सेकेंड एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, मतलब लाजमी डालनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ डालें, आप रिस्पॉन्स का इंतजार ना करें, इन दोनों को कंबाइन करें, दोनों को डालें, तो ये पेशेंट जो है ना ये रिस्पॉन्ड कर सकता है, पॉसिबल है। और एक और टेक्नोलॉजी अब आगे आ जाएगी, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल हो रही है, अब गलत जगह भी लोग एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करें, जबकि हम बार बार बता रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन को सिर्फ एंटेरिक फीवर के लिए छोड़ दिया जाए। तो इस पर फार्माकोलॉजिकल कंपनियां नाराज़ हो गई, और आपको मालूम है हुक्मरानी तो है नहीं हम किसी के यहाँ पे, तो इस ड्रग को उन्होंने आज़ाद छोड़ा हुआ है अभी। ये तो फिर भी ये महंगी बहुत है, तो ये हाथ ही नहीं डालते लोग, ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और जगह भी इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रग को ना छेड़ें प्लीज़, अगर आपने छेड़ा हो जो छेड़ रहे हैं तो फिर XXMDRTF हो जाएगा, यानी अब वो ड्रग्स जो हैं ये भी फेल हो गई, तो फिर आपके पास XXMDRTF हो जाएगा। अब ये सारी की सारी फेल हो जाएंगी, तो फिर आप क्या करेंगे?
अब मसला ये है कि इनको MDRTF है या XMRTF है या XMR होने वाला है। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जो कि आपके पास नहीं है, अक्सर जगह नहीं है। ऑल्टरनेटिवली यूरिन स्टूल और बोन मैरो कल्चर ये लेट होता है, चूँकि ये जब तक पेशेंट सेप्टिसीमिया में भी आ जाता है तो इसलिए इसकी इतनी एफिकेसी रही नहीं। ये आप प्रूव कर सकते हैं पोस्टमार्टम में, एग्जामिनेशन में, कि भाई इसको हुआ था, डेथ की कॉज ये थी। इस तरह से तो आप समझ लें, लोग तैयार भी नहीं होते, कंसेंट नहीं देते बोन मैरो के लिए। कंसेंटेड पेशेंट बहुत कम है। इन आवर कंट्री द पॉसिबिलिटी ऑफ अबव इन्वेस्टिगेशन आर डिफिकल्ट। क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बिकॉज द पेशेंट अराइव लेट, ऑलरेडी टेकन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब बाय GP और क्वाइक और कंसल्टेंट वट। अनकंसेंटेड पेशेंट होते हैं ये, नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते, ये बोलते हैं दवा लिखो हम छोड़ो। Important note, usually blood culture is gold standard but later is false negative, unfortunately in our country because of many reasons. इसमें से एंटीबायोटिक पहले दे दी गई, पहले ही बुखार में आपने दे दी, बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी डाल दी। देन हाउ टू लेबल दिस सेंसिटिव, आपके इसकी बड़ी मुश्किल है आपके लिए। आप किसको सेंसिटिव बोलें, किसको MDRTF बोलें, किसको XMDTRF बोलें, आपके लिए मुश्किल है। फिर आप क्या करें? कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है WHO को, या तो उसको फॉलो करें, जो फॉलो करना आसान नहीं है, इसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल है इसका। वो क्लिनिकल क्राइटेरिया जो है, व्हाट टू डू इन आवर कंट्री इज दैट प्रोबेबल सोल्यूशन ये है कि स्टेप 1 करें आप, ये मेरा सजेशन है, डू ब्लड और यूरिन स्टूल, बोन मैरो कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड क्लासिफाई द पेशेंट अकॉर्डिंगली। अगर आप करते हैं ब्लड CBC, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन इम्यून जो है ना, वो ब्लड तो आप करा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो उसकी स्टेज है वो डिजीज़ की, वो जो है वो ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया है या फिर बैक्टीरियमिया है, उसमें ये पकड़ लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एंटीबायोटिक ले चुका तो वैसे ही आपने लॉस कर दी है उसकी सेलेक्टिविटी को, तो 30% 40% वैसे ही गिर गई है। स्टेप 2 में ये है कि ब्लड CBC कराएं आप, एंटीजन टेस्ट जो कम है, टाइफाइड, IgM, उसको चले मान लेते हैं हम, लेकिन ये भी ज़ाहिर है कहीं नहीं दूसरे ममालिक में नहीं किया जाता। प्लस क्लिनिकल फाइंडिंग्स है आपके पास, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपके पास बहुत सारी ये 3 या 4 भी आपको क्लू मिल जाते हैं, प्रोबेबल मोस्ट लाइकली टाइफाइड इज लेबल एक्सक्लूडिंग ऑल डिफरेंशियल डायग्नोसिस, खासतौर पर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, इसमें ऐड किया जाएगा एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, किसी भी फॉर्म में एब्डोमिनल कंप्लेंट्स हों, और उनमें CBC जो मैंने अभी पहले सुना दिया था आपको कैसे पढ़ते हैं, अगर वो मिला देते हैं आप एब्डोमिनल फाइंडिंग के साथ, फीवर के साथ, तो फिर ये केस को आप डिस्क्राइब करें कि प्रोबेबल इट इज़ और डिजीज़ रिलेटेड विद एंटेरिक फीवर। स्टेप 3 में एक अगर फिर ये करेंगे आप, थेरेपी ट्रायल में जाना पड़ जाएगा अब आपको डिस्क्रिप्शन के लिए ये क्या है, तो एटलीस्ट 3 days शुड बी ट्राइड। क्यों आप जो सेकेंड लाइन पर डायरेक्टली चले जाएँ और आप सेकेंड लाइन ड्रग में सिप्रोफ्लोक्सासिन या ऑफोफ्लोक्सासिन अलग अलग हैं, ये दवाएँ अलग एक ही ग्रुप की हैं, उनको ट्रायल दें। मैंने देखा है सिप्रोफ्लोक्सासिन से रिस्पांस नहीं मिला तो ऑफोफ्लोक्सासिन से रिस्पांस मिल गया उसको, ये हैरानगी की बात है। तो वो भी कर सकते हैं आप, साथ साथ जो है ना आप इसको ऑगमेंटल पे ट्रायल दे सकते हैं। आप इसका जो है जो ट्रायल बेसिस उन्होंने बनाई है, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफेरिक्सिन, इनको ट्रायल दें, इससे डिस्क्राइब होगा ये सेंसिटिव है, ये मल्टी ड्रग ये तो है ही है ना, इस वक्त जो पोजिशन है इसकी है, इसकी तो बहुत कम लोग रह गए हैं। ये MDRTF वाले बहुत ज़्यादा हैं, MDRTRF वाले भी हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर वो MDRTRF आप समझते हैं सेकंड लाइन फेल हो गई तो फिर थर्ड लाइन पे चले जाएँ हम। थर्ड लाइन की जो ड्रग्स हैं वो मैंने बता दी थी कि उसमें जो है ना मेरिपिनम्स या कार्बापिनम्स के साथ या मोनोबेक्टम के साथ एजिथ्रोमाइसिन दोनों को देते हैं आप, for 7 days at least should be given। 10 days हो तो अच्छी बात है, इस तरह पेशेंट बच जाएगा पाइमिया से और फर्दर इन्फ्लेमेटरी पाथवेज से। मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये है कि माइल्ड एंटेरिक फीवर, अगर किसी का है ना फीवर हुआ है, उसके अंदर कोई भी सिस्टमिक सिम्टम नहीं मिल रहे, ओरल ड्रग्स देनी चाहिए, सेकेंड लाइन ड्रग्स। अकॉर्डिंग टू सजेस्टेड प्रोटोकॉल गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए और फ्लूइड मैनेजमेंट होना चाहिए। मॉडरेट टू सीवियर एंटेरिक फीवर है किसी को तो गिव द पैरेंटल ड्रग्स।
गिव द प्रांटल ड्रग्स, और प्रांटल जब ड्रग देते हैं इसके अंदर तो फिर क्या होता है कि पेशेंट का रिस्पांस बेहतर हो जाता है। सीवियर में आप दे सकते हैं हॉस्पिटल में या होम में, लेकिन बेहतर है कि हॉस्पिटल में दी जाए। और टॉक्सिक एंटेरिक फीवर ये है कि पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन आईसीयू। अब टॉक्सीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, शुड बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल। प्रिवेंटिव मेजर्स आपको मालूम है कि वॉश योर हैंड्स, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर द यूज़, अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड, ये बड़ा मुश्किल है काम लोगों को बताना। ईट ओनली थॉरली कुक्ड फूड, ये भी बताना बहुत मुश्किल है। एंड श्योर प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये भी बहुत मुश्किल है। जगह जगह गटर बल रहे हैं आपके यहाँ, वहीं पर जो है ठेले लगे हुए हैं, तो मगर करना तो पड़ेगा आपको ना, चेकआउट तो किसी न किसी का काम है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये है कि आप इसको लॉन्च करें, या तो ओरल वैक्सीनेशन देते हैं, एक कैप्सूल बाय मंथ दे दें, नंबर ऑफ डोजेज नेसेसरी हो तो फिर उसके बाद जो है ना वो आप एक और खिला दें विद इन 4 वीक्स एक दफ़ा। फिर टाइम बिटवीन 2 डोजेज में कम से कम 2 से 7 दिन होना चाहिए। बट टोटल टाइम नीडेड टू सेट अप फॉर वैक्सीनेशन 2 वीक्स के बाद। अब मैक्सिमम एज ऑफ वैक्सीनेशन 5 ईयर से है, और बूस्टर नीडेड एवरी ईयर अगर आप देते हैं इसको तो 5 ईयर्स है। जबकि इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शन है इसका वो फर्स्ट दिया जाए, और उसके बाद जो है ना ये कम से कम जो है ना इसके अंदर जो दिया जाए वो अपार्ट फॉर 1 मंथ दिया जाए या 2 वीक्स दिया जाए, एटलीस्ट 2 वीक्स, ठीक 1 से 1 मंथ। और इसकी जो है मिनिमम एज जो है 2 ईयर्स होनी चाहिए, 2 साल से कम बच्चे को नहीं देना चाहिए। और बूस्टर जो है ना वो आप हर साल लगा सकते हैं इसका, TAB वैक्सीनेशन कहलाती है। रिसेंट एडवांस ने रिसर्च ये अभी लिंजोलेट पे वर्क हो रहा है कि ये इफेक्टिव है रिफामेसिन पे। ओके, अच्छी बात है, क्योंकि एक्सटेंडेड मोर एक्सटेंडेड अगर हो गया ये EXX अगर हो गया MDR-TF, तो फिर उसमें अब आपके पास ये चॉइसेस हैं जिन पर वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अभी इन्होंने इसको नहीं कहा है कि इनमें दिया जाए, ये बचा के रखा हुआ है अपने पास, बचाने के लिए ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। इनको ट्रायल बेसिस पे, इनका पेपर भी शाये नहीं किया है इन्होंने, इसलिए कि अभी मुकम्मल नहीं है इनके पास। डाइटरी मेजर्स ये क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं भाई खाना खाते हो तो बस वो बिकॉज अब्डोमिनल कंप्लेंट ज़्यादा है तो ऐसा खाने खाएं जो कि लाइट ग़िज़ा, खिचड़ी वगैरह, चावल एब्जॉर्ब अच्छा हो जाते हैं, कोकोनट एब्जॉर्ब अच्छा हो जाता है, जो फ्रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसी तरीके से सैलड्स बना के, और इसी तरीके से जो है क्रीम्स की बनी हुई चीज़ें हैं जो लाइट क्रीम के साथ बनाई जाती हैं वो दी जाती हैं। भूखा नहीं मारा जाता, खिलाया जाएगा उसको, न्यूट्रिशन दिया जाएगा, गुड अच्छा न्यूट्रिशन दें जो ये सारे आपको बताए हैं। जैसे आप जो है ना हलवा जाते हैं वो बना के दे दें तो पेशेंट आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर ले। स्मॉल इंटेस्टाइन पर लोड कम करने वाली चीज़ें दें, ये निहारी पाए वगैरह नहीं खा सकता, मतलब ये है। लेकिन ज़्यादातर आफ्टर टाइफाइड रिकवरी में फुल न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। फुल न्यूट्रिशियस डाइट कैलोरीज कम से कम 1800 होनी चाहिए तो 2000। उनमें ये सारा शेड्यूल्स हैं जो आप बताते हैं लोगों को, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, दरमियान में जो खाते हैं खाना फुल फ्लैश दिया जाए उसके बाद, ताकि रिकवरी पीरियड इसका अच्छा हो जाए। ये सारा है कि कितना टोटल फैट इतना है, वो इतना हो, इतना हो, इतना हो, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है मरीज़ को। लेकिन ज़बानी कलामी आप बता सकते हैं कि भाई घर की पकी हुई सारी चीज़ें खाएँ, एक्सेप्ट फूड स्ट्रीट वाली चीज़ें जिनकी मक्खियाँ बैठती हैं, वो बैठती हैं, और सारे मेजर्स करें, उनकी वॉशिंग को बताएं। उनको एक जुमला बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई फ्रूट धो के खाने हैं और पत्तों वाली सब्जियों को रगड़ रगड़ के साफ़ करना है वगैरह वगैरह। हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये फीकोल और रूट वाला प्रॉब्लम है। तो मैंने इसका जवाब दिया ये है कि थैंक्स इफ़ यू लिसन प्रेजेंटेशन, अगर आपने सुनी है तो अच्छी बात है। इफ़ एनीथिंग मिसिंग और लेफ्ट प्लीज़ लेट मी नो, मेरी नॉलेज भी तो बढ़ाए ना आप। मैंने कुछ गलत कह दिया है तो बता दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आपके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ऑन व्हाट्सएप नंबर मेरा 03361313186 है, जो मैंने लिखा है, इस पर कमेंट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।